Hello students, welcome to Swayam Biology. I am MP sir and today we will discuss about the first chapter of your CBSE NCERT book, that is your living world. As you all are biology students, that means you all are having biology as a subject, so you must have some idea about the biology. So as you all know that biology, it is the study of life, isn't it? And if I ask you what is life, then it may be difficult for you to answer what is life actually. So it does not have a proper definition. That means we cannot define life in a proper way. But if I simplify the question and if I ask that why you consider yourself as living and this marker in my hand is non-living or this whiteboard is non-living, then you have an answer that, sir, because we have life, we are living, and this marker, it does not have life, isn't it? So there are a large number of animals and plants in this world. You must be wondered, आपको बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा कि कैसे ये इधर से उधर जा रहे हैं, कैसे ये बहुत सारे कंडीशंस में अपने आप को अडाप्ट करके वहाँ पे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ग्रो कर रहे हैं, कैसे उनका ग्रोथ होता है, कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, ये सब है क्या? सो ये सब जो है ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर possessed by us or all living organisms, we are called as living, whereas this non-living object like this whiteboard or this of your marker, it does not have that characteristic feature, so that is why it is non-living. So let us first list out some of the basic living characteristics, ठीक है, because of which we consider ourselves as living, and those living characteristics we are going to discuss are first cellular structure, second metabolism, third growth, fourth reproduction, and fifth consciousness. So let us first take these 5 characteristics, or the living characteristic to be specific, and let us try to understand what these characteristics mean for a living organism. ठीक है? So let us first discuss about the cellular structure. Cellular structure means you know that each and every living organism in this world, they are made up of cell, either single cell or many cells. That means either they are unicellular, made up of single cell, or maybe multicell, amoeba, yeast cell, or a number of protozoans, bacteria, they are having a single cell, and all other higher organisms are made up of multiple number of cells. So the physical existence of a living organism is due to this cell. The cells, they organize themselves to form the structure or the frame of the organism. So that means the cell is the structural unit of living organisms, or simply life. Similarly, the cell itself, it performs all the activities, living activities like digestion, excretion, etc., respiration. So what are the functional aspects in a living body or the living activities? They all are also performed by the cell, because living body, what we are performing is actually they are performing by the cell. So that is why cell is also
the functional component or the functional unit of life. So we can say that cell is the structural and functional unit of life. And you must agree with me that cell is that structure or cell is that characteristic which is totally absent in non-living object and it is present only in living organisms. By saying so, can we say that cellular structure is a defining character and all defining character to distinguish a living from non-living? Now here a term comes defining character. So let us first try to know what actually a defining character is. A defining character must satisfy two conditions, or a character is said to be defining if it satisfies two conditions. And what are those? Defining character. To be said a defining character, that characteristic must have your satisfying or must satisfy these two conditions. What are those conditions? That character must be universal. That means unexceptionally it should be present in all living organisms, and साथ में simultaneously it must satisfy the other characteristic as well or other condition, and the other condition says it should not be shown by non-living object. So कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करना चाहिए, उसको ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करना चाहिए और उसमें भी कोई एक्सेप्शन, एक भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए. इफ इट सैटिस्फाइज बोथ द कंडीशन देन वी विल से दैट कैरेक्टर इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर. So with this definition, can you tell me whether this cellular structure will be a defining character or not? Yes, of course it is a defining character because it satisfies both the conditions. It is universal. All living organisms are made up of cell. There is no exception in it. If there is no cell, there is no life, and it is not present in any non-living object. कोई भी non-living object में cell नहीं है. So that is why cellular structure is not only a distinguishing feature between living and non-living, it is a defining feature or defining property as well to distinguish a living from non-living. Okay. Now let us see the second one, the metabolism. Okay. So let us see about this metabolism in brief. Metabolism, this word, it comes from a word called as metabol, and metabol means to change. To change. ठीक है? Now, all living organisms, they have some cellular structures, and the cellular components, they are made up of different types of chemical compounds. Like your cell membrane, it is made up of lipoprotein, that is lipid and protein. The cell contains the protoplasm, which consists of different types of ions, different type of protein, amino acid, your minerals, there is vitamins, etc., etc. They all are chemical components. Water, isn't it? Similarly, that means if the cell is made up of this type of chemical components and your body is made up of cell, and if the cell is your collection of these chemical substances, indirectly your whole body is the chemical components, or these are made up of different types of chemical components. And if we all living organisms are made up of different types of chemical components, then whatever the living activities or whatever the processes, living processes which are going on in our body, right from digestion to respiration to nerve impulse transmission, these your actions are being performed
by these chemical substances. Now these chemical substances in our body are just transformed from one form to another. Say for example, by taking food, we digest that food, and that food contains protein, carbohydrate and lipid and other minerals, water, etc., etc. Then these are digested in your alimentary canal into another kind of chemical compound. These chemical substances are being absorbed into your body, and these chemical substances are again utilized by your body. Similarly, in your liver, carbon dioxide combines with ammonia and it forms urea. That urea goes out of the your body as urine. ये एम्यूनो एसिड एमोनिया आया कहाँ से? आपने जो प्रोटीन खाया था, दैट प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इनटू एमिनो एसिड and that amino acid is being deaminated in liver to release this ammonia, and because ammonia is toxic, लिवर में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके और एक केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया. ये सब मैं बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें काफ़ी सारा एक केमिकल कंपाउंड दूसरा केमिकल कंपाउंड में तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है. Let's say for example photosynthesis in plant. So what happens in photosynthesis in plant? Carbon dioxide and water, they combine together in presence of sunlight and it produces carbohydrate, isn't it? So two chemical compounds, small chemical compound, that is carbon dioxide and water, they combine to form carbohydrate. So different chemical components, they combine to form another kind of chemical components, or we can say that one chemical component or different types of chemical component, they just transform from one type to another type. All these chemical changes which are taking place in a living body are collectively, or their sum total is known as metabolism. Got my point? So what is metabolism? Metabolism is the sum total or summation of all the chemical changes which occur in a living body or living organism. Their sum total is known as metabolism. आपने और एक भी चीज़ नोटिस किया होगा इसमें कि कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे हैं जिसमें कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और छोटे छोटे कंपाउंड दे कंबाइन टू फॉर्म ए वेरी लार्ज कंपाउंड. लाइक इन फोटोसिंथेसिस, carbon dioxide and water, very small molecules, they combine to form a very large organic compound, that is carbohydrate. Okay. Similarly, in some other cases like in respiration, a large organic molecule, that is carbohydrate or glucose, it breaks down into smaller compound, that is carbon dioxide, water and energy. So आपकी बॉडी में जो भी केमिकल चेंजेस हो रहा है, कुछ केमिकल चेंजेस ऐसा है जिसमें कि कोई सिंथेसिस हो रहा है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, और कुछ केमिकल चेंजेस ऐसा है जिसमें कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल ब्रेक होके छोटा छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है. इनडायरेक्टली यू कैन से दैट दिस मेटाबॉलिज्म इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, और ब्रॉडली इट कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. सो व्हाट आर दोस टू टाइप्स? द मेटाबॉलिज्म आर आइदर एनाबॉलिज्म or catabolism. So there are two types of metabolism. In case of anabolism, what happens? It is a synthetic process, or it involves all the synthetic process. That is indirectly constructive processes. So आपके बॉडी में जितने भी constructive processes हो रहे हैं, they all are anabolic reactions. Similarly, the breakdown process, or you can say that the destructive processes are catabolism. ठीक है. तो इसमें एनाबॉलिज्म में क्या होता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल, whereas here इसका उल्टा, a larger molecule break down into smaller molecule, isn't it? Okay. So here what happens in case of anabolism, because this is a synthesis, something is synthesized in your body, so here energy is stored.
energy is stored in the form of potential energy, and that energy is being utilized for growth and development of the body. ठीक है, but here in case of catabolism, energy is released okay, and that released energy is being utilized for various living processes in your body. फंक्शनल एस्पेक्ट, फंक्शन, जो कुछ भी फंक्शन सेल के लेवल में हो रहा है या फिर एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है, दिस इज ड्यू टू दिस एनर्जी विच इज बीइंग रिलीज फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, दिस एनाबोलिज्म, द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस एनाबोलिज्म इज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस इन बॉडी. सिमिलरली कैटाबोलिज्म इज रेस्पिरेशन. ठीक है, कैटाबोलिज्म इज रेस्पिरेशन. सो दिस इज योर एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म. बट नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, नो डाउट मेटाबोलिज्म is a distinguishing feature between living and non-living, no doubt, isn't it? But can we say that this is also a defining character like your cellular structure? That means this is an all exclusive defining feature to distinguish a living from non-living. तो मैंने आपको पहले से ही बोला है कि डिस्टिंग आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर होने के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है और दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी है. तो ये पहले देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो अनएक्सेप्शनली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यस, इट इज टेकिंग प्लेस इन ए सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया एज वेल एज इन ईस्ट सेल, एंड इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. So cellular activities are taking place in all living organisms. So this is unexceptionally true. Then the second condition is it should not be present in non-living object. Of course, कोई भी non-living object में metabolism नहीं होता. ठीक है? So we can say that metabolism is also a defining feature. But यहाँ पे एक सवाल आता है, ये है कि इसका जो isolated reaction है जो body में हमारा होता है, different types of reactions, इसका कुछ आइसोलेटेड रिएक्शन को सेम टाइप ऑफ रिएक्शन वी कैन परफॉर्म इट इन द केमिकल लैब इन द टेस्ट ट्यूब, दैट इज इन विट्रो. अगर आपके बॉडी में कुछ रिएक्शन हो रहा है या फिर सेल लेवल में कुछ हो रहा है तो इसको कहते हैं इन विवो रिएक्शन, और ये अगर बाहर कहीं पे हो रहा है देन दिस इज कॉल्ड एज इन विट्रो. तो सपोज कुछ आइसोलेटेड रिएक्शन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हम बोल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आप बोल सकते हो सर ये तो लैबोरेटरी में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो फिर ये कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया? नो डाउट, कोई भी केमिस्ट्री लैब में, अगर केमिकल लैब में आपने कोई टेस्ट ट्यूब लेके वो रिएक्शन किया, दीज आर सर्टनली लिविंग रिएक्शंस, नो डाउट. लिविंग बॉडी में जो रिएक्शन होता है वो लिविंग रिएक्शन ही है, बट ये लिविंग थिंग्स नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो हो रहा है लिविंग रिएक्शंस हो रहा है, उसमें भी आपको लिविंग बॉडी के ही कुछ प्रोडक्ट चाहिए जो कि नेसेसरी है लिविंग रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, एंड दैट इज योर एंजाइम्स. सो एंजाइम्स आर नेसेसरी टू कंटिन्यू दैट रिएक्शन, और दैट लिविंग रिएक्शंस और दिस रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ दैट एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी ओनली. ठीक है, सो दीज आर सर्टनली द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. कोई भी अगर आइसोलेटेड रिएक्शन इन विट्रो भी होता है टेस्ट ट्यूब में, तो these are certainly no doubt they are not, living reactions, but they are not living things. Okay, so this is all about your metabolism. Now let us move to another very important aspect, that is growth. And what is growth actually? तो growth का जो definition है वो actually it is an irreversible increase in size or volume or the whole organism. Okay,
इट इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज। एक बार ग्रोथ हुआ तो इरिवर्सिबल है, ग्रोथ फिर नीचे नहीं आ जाएगा, आप छोटा नहीं हो जाएगा, अगर होगे तो बड़े ही होंगे। ठीक है, सो इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम एंड द होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ग्रोथ। अब ये हम देखते हैं कि जो ग्रोथ है ये एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ओनली होता है या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में होता है। इससे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि ग्रोथ होता कैसे है। देखो, द ग्रोथ अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय टू मीन्स। देयर इज इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ये कंटेंट जब ज़्यादा हो जाएगा, दिस सेल डेफिनेटली इंक्रीज इन साइज। दिस साइज होगा, सेल का ग्रोथ हुआ, सो दिस इज कॉल्ड एज योर ग्रोथ। इंटरनली सेल का जो प्रोटोप्लाज्मिक मास है ये धीरे धीरे बढ़ा, अगर ये बढ़ेगा तो सेल भी ग्रो करेगा। सो दिस इज द इंक्रीज इन साइज। तो ये इंक्रीज इन साइज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द सेलुलर मास in the form of your protoplasmic mass. But here your cell increases in size due to growth which takes place internally within the cell. Cell के अंदर प्रोटोप्लाज्म बढ़ा, such type of growth is called as intrinsic growth. If the growth takes place from internally, अगर भीतर से ग्रोथ हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक मास, such type of growth is called as intrinsic growth or internal growth. ठीक है, और बायोलॉजिकल टर्म में इट इज नोन एज इंटुससेप्शन टाइप ऑफ ग्रोथ। So what is intussusception type of growth? The growth which occurs from within is known as intussusception type of growth. ठीक है, और कैसे ग्रोथ हो सकता है? अगर जब सेल डिवाइड करेगा, यू नो दैट द सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस। सो व्हेन द सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस, one cell becomes 2 and 2 becomes 4, 4 becomes 8. So there is increase in the number of the cell. So here there is an increase in size of the cell, and here there is an increase in the number of the cells. मतलब आपके बॉडी का जो ग्रोथ होता है ये दो कारण के लिए होता है। एक साथ सेल का ग्रोथ हो रहा है और साथ में सेल का डिवीजन हो रहा है। सो डिवीजन होने से सेल का आपका नंबर इंक्रीज होगा। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ एंड दैट इज व्हाई दीज टू आर कंसिडर्ड एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन, दो। सो ग्रोथ का दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड व्हाट आर दोस ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स? द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, एंड द सेकेंड वन इज योर सेल डिवीजन which causes increase in number of cells. These two aspects are called as the twin characteristics of growth. ठीक है, दोनों की वजह से आपका ग्रोथ होता है। कोई बात नहीं, होता तो है, पर ये क्या जो ग्रोथ है ये क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होता? लेट अस सी whether this growth occurs in non living object or not. Let us consider a mountain here, or you can consider your board, एक आइस का एक गोला आपके पास है, तो आपने और कुछ आइस उसमें ऐड कर दिया तो गोला बड़ा हो गया। या फिर ये जो माउंटेन है, कुछ साल के बाद आपने देखा कि माउंटेन बड़ा हो गया है थोड़ा, पर ये जो ग्रोथ हुआ इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सटर्नल एडिशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द mountain. It is not due to increase in internal substances. Internally कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है एक्सटर्नली ऐड हुआ है। ठीक है, तो जो भी हो ग्रोथ हुआ है, एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी ग्रोथ होता है। ठीक है,
So such type of growth which occurs from outside or externally is called as external growth or extrinsic growth, and in biology this is called as accretion type of growth. ACCRETION, accretion type of growth. When the growth occurs from outside due to addition of extra materials, this is called as your accretion type of growth. ऐसा नहीं है कि लिविंग बॉडी में accretion growth नहीं होता. आपका जो हेयर है, हेयर केराटिन डिपोजिट होता है और ये हेयर बड़ा बड़ा होता जाता है, आप सैलून में उसको फिर कटवाते हैं. आपका जो नेल्स है, नाखून है, वो बढ़ता है, ये भी केराटिन डिपोजिशन है. तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ हमारा भी होता है. सेल वॉल, जो सेकेंडरी सेल वॉल है प्लांट का, उसमें भी एक्सटर्नली ग्रोथ होता है. जब सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन होता है प्लांट में, जो मैच्योर्ड सेल होता है उसमें सेकेंडरी सेल वॉल होता है. जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो भी डिपोजिशन ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल है, लाइक आप बाद में पढ़ेंगे उसको, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, सिलिका एटसेट्रा, दे ऑल आर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस. तो उनका भी एक्सटर्नल ग्रोथ भी हमारा भी होता है, पर साथ में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी एक्सटर्नल ग्रोथ होता है. तो ग्रोथ एज सच ऑल्सो टेक्स प्लेस इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, भले ही वो बाहर से हो बट होता है. तो कैन वी से दैट ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर? अब हम उसको नहीं बोल सकते डिफाइनिंग कैरेक्टर. क्यों? ये जो फर्स्ट वाला जो केस है वो तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब इट इज अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेल हो या फिर मल्टीपल सेल हो, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हो. बट सेकेंड जो कंडीशन था, इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इस ये कैरेक्टर को शो ना करता हो, बट यहाँ पे शो कर रहा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी शो करता है ग्रोथ. सो दैट मीन्स ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. गॉट इट? ये हो गया आपका ग्रोथ. अब हम देखते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन, ग्रोथ प्लांट और एनिमल में कैसे होता है, और बाद में हम देखेंगे कि ये जो ग्रोथ है ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस है या कुछ न्यू रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है, सो लेट अस टेक ए जस्ट few differences between the plants and animals growth. In case of plant, what happens? The growth is indefinite. ठीक है, the growth does not cease and it continues till its death. तो ये indefinite growth है. बट एनिमल में क्या होता है, the growth ceases much before its death. कुछ साल के बाद वो ग्रोथ अपने आप सीज हो जाता है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स में 18, 20, 25 साल के बाद और ग्रोथ नहीं होता. ठीक है, सो ग्रोथ इज डेफिनाइट हियर. प्लांट केस में ग्रोथ क्या होता है, इट इज यूजुअली लोकलाइज्ड ग्रोथ और इट इज कन्फाइंड. द ग्रोथ इज कन्फाइंड. जैसे कि रूट टिप में ग्रोथ होता है या फिर स्टेम टिप में ग्रोथ होता है, चारों तरफ से एक साथ ग्रोथ नहीं होता, साइमल्टेनियस ग्रोथ नहीं होता. बट एनिमल में ये साइमल्टेनियस या फिर डिफ्यूज्ड ग्रोथ है. हर ऑर्गन एक साथ ग्रोथ करते हैं इनका, और हर जगह से एक साथ ग्रोथ होगा, सबका सेल डिवाइड होगा. ठीक है, तो ये है आपका एनिमल और प्लांट में कुछ डिफरेंसेस जो कि ग्रोथ को लेके हैं. राइट, अब ये हो गया आपका ग्रोथ. अब ये ग्रोथ को लेके हम इसका जो डिफरेंसेस है, यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ डिफरेंसेस हैं क्या, वो हम देखेंगे बाद में जब हम जाएंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में. ठीक है, और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक में. बट इससे पहले थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं कि ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू मेटाबॉलिज्म. अपने अभी थोड़ी देर पहले हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था. हमेशा याद रखना, जब भी किसी सेल का या फिर ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म एक्सीड्स कैटाबॉलिज्म, मतलब एक सेल के अंदर जब तक आपका मेटाबॉलिज्म नहीं, एनाबॉलिज्म जब तक कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा होगा, मतलब सिंथेसिस सेल में ज़्यादा हो रहा है और इसका जो यूटिलाइजेशन है या फिर एनर्जी जो यूटिलाइज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है,
ब्रेकडाउन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का वो कम है, पर सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, मतलब स्टोरेज ज़्यादा हो रहा है एनर्जी का। इन दैट केस जब तक ये कंडीशन चलता रहेगा, देयर इज डेफिनाइट ग्रोथ, द सेल विल ग्रो, सेल का ग्रोथ होगा, क्योंकि हम सिंथेसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, खर्चा कम हो रहा है। बट ए स्टेज कम्स जब धीरे धीरे सेल मैच्योर होगा और इसका जो एनाबोलिज्म है ये ऑलमोस्ट सेम टू कैटाबोलिज्म। अब एनाबोलिज्म धीरे धीरे कम होता जाएगा और कैटाबोलिज्म बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब ये एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कम प्रिपेयर हो रहा है। इन दैट केस द सेल स्टॉप्स ग्रोथ, अब और ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा होगा तब तो ग्रोथ होगा, ठीक है। एंड द थर्ड स्टेज जब आएगा, जब ये सेल मैच्योर से सेनेसेंस की तरफ, मतलब डेथ की तरफ जाएगा धीरे धीरे, जब इसका ज़्यादा एज हो जाएगा, तो उस समय क्या होता है, ये जो एनाबोलिज्म है ये लेस हो जाएगा कैटाबोलिज्म से, मतलब अब सिंथेसिस बहुत कम होने लगा है उस सेल में और इसका कैटाबोलिक प्रोसेस जो बहुत बढ़ने लगा है। इन दैट केस वी से दैट दिस इज ए नेगेटिव ग्रोथ, दैट मीन्स और ग्रोथ नहीं हो रहा है, नाउ द सेल इज हेडिंग टुवर्ड्स डेथ। सो डेथ कब होता है, जब एनाबोलिज्म से कैटाबोलिज्म बहुत एक्सीड कर जाता है, देन इट लीड्स टू डेथ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रोथ। Now let us move to the next characteristics, that is reproduction. Reproduction is a process which is the ability of an individual or organism to produce its own kind, and whatever the offspring it produces, that offspring also has the capacity to reproduce when it attains its reproductive maturity. जब ये बड़ा होगा यंग से, तो ये इसका भी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रहेगा, सो दैट जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। इट इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस देयर इट्स ओन काइंड, ठीक है। ये है आपका रिप्रोडक्शन। सो यू मस्ट एग्री दैट रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हो सकता है it takes place in all living organisms, but कुछ एक्सेप्शन हैं, so let us see, तो बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको बोला था कि ग्रोथ जो है और रिप्रोडक्शन के बीच में कोई रिलेशन है क्या, इफ इट इज विद रिस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो, in case of unicellular organism what happens, it is a single cell and the cell when divides it becomes two cell and two cells become four cell, like that. So when the unicellular organism divides, it is the major mode of reproduction, that is the fission in case of unicellular organism. जब एक सेल डिवाइड करता है एंड इट इंक्रीजेस द प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग, जितना ज़्यादा ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सिंगल सेल का सेल डिवीजन ही इज द मेन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन होना ही उसका मेन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है। बट साइमल्टेनियसली हमने अभी ग्रोथ में पढ़ा था कि ग्रोथ का दो मीडियम है ग्रोथ करने का एक सेल का, एक है सेल का इंक्रीज इन साइज और साथ में साइमल्टेनियसली देयर इज डिवीजन ऑफ द सेल। सेल जितना डिवाइड होगा, जितना ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस होगा, उतना उस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा। तो कैन वी से दैट इन पर्टिकुलरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिप्रोडक्शन, सेम थिंग है, और इनडायरेक्टली दे आर सिनोनिमस। ऑफ कोर्स इट इज सिनोनिमस बिकॉज ग्रोथ सेल डिवीजन से होता भी है और यहाँ पे सेल डिवीजन का मीनिंग ही रिप्रोडक्शन है, because a unicellular organism divides
to produce new progeny, and it is the main mode of reproduction in unicellular organism. At the same time, this is also the one of the characteristic of growth out of the two twin characteristic. So that is why we can say that growth is synonymous to reproduction in unicellular organisms. Unicellular organisms. ठीक है? Such type of your relationship is known as an all-inclusive event or relation or characters, or they are mutually inclusive characters. ठीक है? Growth and reproduction in unicellular organisms are mutually inclusive characters. But if we consider it with multicellular organisms, what happens? In multicellular organism, growth occurs by division of the cell as well as increase in cell. ये तो होता है. But reproduction का जो meaning है यहाँ पे, your cell division is a means of reproduction, but in case of multicellular organism, reproduction और cell division का कोई relation नहीं है. Cell division is a different thing और इनका जो reproduction process है वो अलग है. वो गैमेट फॉर्मेशन होता है. सो सेल डिवीजन होने से रिप्रोडक्शन होगा, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है. सो इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट सिनोनिमस. सो दे सच टाइप ऑफ योर रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बीच में कोई रिलेशनशिप उनका नहीं है. ठीक है? ये हो गया आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंसेस इन केस ऑफ योर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर रिप्रोडक्शन इज ए योर म्यूचुअली whether reproduction is a defining feature or not. Again the same question arises. Now let us see. Defining feature के लिए हमको दो कंडीशन चाहिए. No doubt reproduction does not take place in any non-living object. Suppose a drug manufacturing company जो मेडिसिन बनाता है, एक pharmaceutical company, a drug manufacturing company can manufacture different type of drugs like paracetamol, like nimesulide, like योर डिफरेंट एंटी वोमिटिंग ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग, या फिर वैक्सीन बनाता है. तो कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काफ़ी सारा ड्रग बना सकता है, बट ए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन नॉट मैन्युफैक्चर और कैन नॉट सिंथेसाइज अनदर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ठीक है? ये जो पेन है, ये पेन और एक पेन नहीं बना सकता है कि नहीं? तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका दूसरा जो कंडीशन है, इट शुड बी यूनिवर्सल. और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर एक्सेप्शन भी नहीं होना चाहिए, एक भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, तब जाके हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे. बट लेट अस कंसिडर द हनी बी. इन ए हनी बी there are three different types of honey bees. One, some are called as the males or the drones. One is queen and others are the workers and they are females. The queen honeybee is fertile and the males are fertile. So the males form, they fertilize with the queen's egg to produce new honeybees. But the female workers जो हैं, they are sterile. They have lost the property of reproduction. इनका reproduction property नहीं है. But ये living है कि नहीं? ये भी living है, पर reproduction property नहीं है. तो हम उसको living कहेंगे कि non living कहेंगे? यहाँ पे exception आ गया. या फिर जो suppose कुछ आपका रिप्रोडक्शन होता है या ब्रीडिंग होता है, जैसे कि डोंकी और आपका हॉर्स के साथ. ठीक है? उसमें क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट निकलते हैं, हिनी म्यूल्स. आपने नाम सुना होगा, ये हिनी म्यूल्स हैं
These are reproductive product of donkey and horse. But the hinny and mules, they do not have the reproductive capability. Again, they are sterile. ये और but nature में ये exist कर रहे हैं और they are living. But at the same time they are sterile and they do not have the your capacity to reproduce again. तो ये भी reproduce नहीं कर सकते. तो क्या हर your living organism ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है. तो इसीलिए ये जो रिप्रोडक्शन आपका है, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. इट इज नो डाउट ए डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट इट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ठीक है. So this is your reproduction. Now the last one is the consciousness. Consciousness is the ability of living organisms to aware of their environment. Okay, or you can say that they sense their environment. इनके आसपास जो है हम सेंस कर सकते हैं उसको, हम अवेयर हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज योर कॉन्शियसनेस, राइट. और इंडियनली यू कैन से दैट वी रिएक्ट टू एनी एक्सटर्नल चेंजेस, दैट इज द स्टिमुली. कुछ भी एक्सटर्नल चेंज हो हम उसको रिएक्ट करते हैं. ठीक है. So that is called as your consciousness, or we have the ability to react to a stimuli. This is in one word called as irritability. So living organisms का ये property भी है. Irritability मतलब response to a stimuli. In one word, biological word, it is called as response to stimuli. ठीक है. सो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हमने अभी तक पढ़ा है उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यही होता है. तो ये जो रेस्पॉन्स है मोर और लेस सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा कम बेसी होता रहता है. बैक्टीरिया का कम हो सकता है, ह्यूमन बीइंग का ज़्यादा हो सकता है, लाइक दैट. बट सबका कॉन्शियसनेस है, and it is one of the most, or you can say that it is the most complex characteristics of all these 5 characteristics we have discussed right now. तो इनमें से ये क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम की ज़रूरत होता है और उसमें काफ़ी सारा ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और हर ऑर्गन्स के साथ हर ऑर्गन्स का एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपका एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. और इस कोऑर्डिनेशन को जो प्ले करता है वो है नर्वस सिस्टम, जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है आपका. ठीक है. तो सबका कॉन्शियसनेस होता है. तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन बीइंग जो है इसमें से हम और एक स्टेप आगे हैं. तो भगवान हमको बनाए हैं सबसे मतलब बेस्ट उसका जो सृष्टि है, तो इसमें से ह्यूमन बीइंग जो है हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है. सो ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड, और दे आर द ओनली ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड which possess this specific characteristic, that is self consciousness. ठीक है. Now let us again decide whether this consciousness is a defining property or not. No doubt, it is not present in any non-living object. कोई भी exception नहीं है. साथ में हर living organism more or less they are conscious. सो कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस ज़्यादा कम बेसी हो सकता है, बट कॉन्शियसनेस सबका है. बी इट ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टू ए मल्टी सेलुलर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग्स. सो कॉन्शियसनेस इज अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. सो दैट मीन्स इट इज नो डाउट क्लियर कट दैट कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ठीक है. बट एट द सेम टाइम आई जस्ट मस्ट एड्रेस यू हियर ए टिपिकल कंडीशन. सपोज
ए पर्सन इज देयर हु मेट एन एक्सीडेंट एंड वेंट टू ए कोमा स्टेज, एक 6 महीने पहले से वो कोमा में है, एक एक्सीडेंट हो गया एंड ही वाज इन कोमा एंड द कोमा स्टेज इज कंटिन्यूइंग टिल नाउ। कैन वी से दैट द पर्सन इज डेड? नो। जब तक उसका हार्ट फंक्शन कर रहे हैं, बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, वी कैन नॉट से दैट द पर्सन इज डेड, बट एट द सेम टाइम ही हैज लॉस्ट द कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी। इसका कॉन्शियसनेस तो है नहीं, तो अगर इसका कॉन्शियसनेस नहीं है, ये तो एक्सेप्शनल हो गया, ये तो एक्सेप्शन निकल गया। जो ब्रेन डेड केस है, कोमा में है, वो तो कॉन्शियस नहीं है, तो अगर वो कॉन्शियस नहीं है तो फिर ये डिफाइनिंग कैरेक्टर कैसे हुआ? नहीं। इस केस में क्या हुआ है कि उसका कॉन्शियसनेस था, बट क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट ही वाज इन कोमा। हम ऐसे पर्टिकुलर केस को किस तरह से डील कर सकते हैं? इन सच केसेस वी कैन डील इट लाइक दिस, दैट सच पर्सन हु इज इन कोमा, इसका 2 कंक्लूजन निकल सकता है। इस केस में इसका 2 कंक्लूजन निकल सकता है। क्या? क्योंकि इसका टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है, अभी भी वो लिविंग है, बट इसका लिविंग और नॉन लिविंग होने के बीच में 2 कंडीशन आपका बीच में आ रहा है। कोई कंडीशन सेटिस्फाई किया तो उस तरह वो हो जाएगा। कैसा है? दैट पर्सन इफ restores his or her consciousness, अगर वो किसी तरह से उसका कॉन्शियसनेस वो उसका लौट आएगा या फिर रिस्टोर कर लेगा, जो कि कुछ केसेस में होता है, कोमा स्टेज से वो रिटर्न आ जाते हैं, देन नाउ दिस पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज लिविंग। बाकी कैरेक्टर तो उसका हो रहा था, पर अगर इसका जो रिस्टोर नहीं कर पाया, cannot restore, then such person will be considered as dead or non-living, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है उस कोमा पेशेंट। ठीक है, सो दिस इज टिपिकल एक्सेप्शनल एग्जांपल कोमा केस which may be considered like this. If that person restores his living your consciousness, then he will be henceforth can be called as living. और अगर consciousness उसका restore नहीं हुआ, then we will say that the person is dead or non living. Okay, so this is all about your consciousness. इसको छोड़ के और काफ़ी सारे differences हैं living और non living में, because लिविंग और नॉन लिविंग अगर देखोगे तो सैकड़ों डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, बट आपके एनसीईआरटी में इसको इसी कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक को एम्फेसिस दिया गया है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज योर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यू नो दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन एक स्लाइड हायर लाइन डिफरेंस इज देयर। मूवमेंट मीन्स इट इज द चेंज इन योर बॉडी पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड एक्सिस। मतलब आपका जो ब्रांचेस हैं प्लांट का वो हिल रहा है, लीव्स दे मूव, द आपका ह्यूमन बींग्स जिसका हाथ पैर मेरा लीफ मूव कर रहा है, दिस इज मूवमेंट। बट लोकोमोशन मीन्स द चेंज इन पोजिशन ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। सो आई एम हियर वी आर पोजेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लोकोमोशन। जो एनिमल्स हैं उनका मूवमेंट भी एक प्रॉपर्टी है और लोकोमोशन भी है, बट प्लांट का ओनली मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता है। बट अगर हम इसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें तो ये डिफरेंसेस तो हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट और लोकोमोशन है वो स्पॉन्टेनियस मतलब इंटरनली होता है, इट इज ऑटोमेटिक मूवमेंट। ठीक है, बट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है, फैन घूम रहा है या फिर एरोप्लेन मूव कर रहा है या फिर मेरा जो पेन यहाँ पे हिल रहा है, दिस इज एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है उसके बाद वो मूव कर रहा है। सो हमारा जो मूवमेंट है वो है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और उनका जो मूवमेंट है वो एक्सटर्नल मूवमेंट। तो जो भी हो मूवमेंट उनका भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। सो ये डिस्टिंग्विशिंग हो सकता है, मीन्स मूवमेंट को लेके हम ये बोल सकते हैं कि हाँ लिविंग जो है वो इनका इंटरनल मूवमेंट है और या फिर स्पॉन्टेनियस है, बट नॉन लिविंग का जो मूवमेंट है उसका एक्सटर्नल है। ठीक है, बट दिस इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी शो करता है। ठीक है, थैंक यू। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू द योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स एटसेट्रा। थैंक यू वेरी मच।